PCOD, hormonal imbalance, infertility, weight gain, irregular periods, facial hair, acne. All of these problems are getting hyped these days, and every second or third woman in India is facing this problem. Why this problem is getting this much high? Because of the inadequate eating habits, poor lifestyle management, lack of physical activity, lack of motivation, lack of dedication, and consumption of junk foods. So I'll be talking about the same. तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि जितना भी आपके किचन में प्रोसेस्ड फूड है, आइदर इट इज़ अ जिंजर गार्लिक पेस्ट अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, और टोमेटो केचप, मैदा, ready to eat foods, or anything else, like whichever the thing is packed, either it is a diet bhujia, diet soups, or anything else which is packed, you have to just throw it away from your kitchen, because these foods are seriously harming your hormones in very very bad way. And secondly, आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मैनेज करो. जस्ट डू वन थिंग, जस्ट अडॉप्ट हेल्दी प्लेट मैथड फॉर द सेम. वॉट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी डाइट में, आप अपनी प्लेट में वेजिटेबल्स, हाफ ऑफ योर प्लेट मस्ट बी फिल्ड विद द वेजिटेबल्स, 1/4 there must be proteins, and 1/4 of carbs must be there. And talking about the carbs, you have to include the whole grains in your diet. Whole grains, like you can go for whole wheat flour, oats, quinoa, or you can go for buckwheat, amaranth, millets may you can go for like bajra, ragi. So these foods must be there in your diet, which can help you to balance your hormones in better way, and also helps you to lose your weight in the better way. And along with this point, I just want to add one more point कि आप अपनी रोटी के ऊपर, either you're taking in the form of roti, or in the form of khichdi, or in the form of porridge, make sure to include desi ghee. Desi ghee means देसी गाय का घी. सो दैट इज नोन एज A2 देसी घी. यू हैव टू इंक्लूड इट in any form, which can be really helpful to balance your hormones, for the irregularity of your periods, for facial hairs, for balancing your hormones, and much more. Coming to the second point, what you have to do is include magnesium rich foods in your diet. Rich foods, like you can go for spinach, bananas, nuts, like you can go for almonds, walnuts, raisins, figs, cashews, which are very rich source of magnesium and is really helpful to balance your hormones, plus to cure your PCOD from the root cause, and is also very helpful for the infertility. So try करो कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप सुबह उठते ही सो नट्स ज़रूर लो, जो आपका मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, प्लस आपकी बॉडी को स्टैमिना प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा, पीसीओडी क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और पीसीओडी के कारण बहुत सी गर्ल्स और वुमेन को प्रॉब्लम आती है मूड स्विंग्स की. स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो उसके लिए ट्राई टू इंक्लूड अश्वगंधा इन योर डाइट डेली, ऑन द डेली बेसिस. आप अश्वगंधा पाउडर ले सकते हो, अश्वगंधा की टैबलेट ले सकते हो. आइदर यू कैन कंज्यूम इट इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, और यू कैन कंज्यूम बिफोर योर बेड. इट इज़ रियली हेल्पफुल टू क्योर द पीसीओडी ऑल्सो. सो आपके ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, कॉर्टिसोल लेवल्स को मैनेज करके रखेगा, एंड पीसीओडी क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ट्राई टू इंक्लूड एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स इन योर डाइट. लाइक you should include raw turmeric in your diet, ginger, black pepper, and you can include garlic in your diet, जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को बॉडी में से दूर करने का, और लिवर क्लिनजिंग करने का, वेट लॉस करने का, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का, एंड इसके साथ आपके पीरियड्स भी बहुत अच्छे से रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज, इसकी आप इसको कॉन्कशन बना सकते हो. यू कैन इंक्लूड हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, half a teaspoon of ginger, half a teaspoon of black pepper, and half a teaspoon of garlic, and just boil all of these ingredients in water and have this concoction in the morning empty stomach, which will really help you to cure your PCOD and help you to balance your hormones, plus for irregular periods. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स ज़रूर ऐड करो. बिकॉज नॉर्मली जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, या HB लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है. तो ट्राई टू इंक्लूड डेट्स, नट्स, सीड्स,
एंड यू कैन इंक्लूड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स इन योर डाइट, जो आपको हेल्प करेगा आपके आयरन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, प्लस आपके पीरियड्स भी उसके साथ नॉर्मल स्टार्ट हो जाएंगे. एंड इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैंटी पीरियड्स, मीन्स आपको पीरियड्स तो आ रहे हैं but still you are facing the problem, so iron rich foods can really help you for the same. And nextly, आप ध्यान रखो कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर द विटामिन डी ऑल्सो, बिकॉज नॉर्मली पीसीओडी पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है. सो ट्राई टू टेक अ सन बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टू टेक द सन बाथ. सेकेंडली, आप अपनी डाइट में फिश ऑयल ज़रूर इंक्लूड करो, egg yolks include karo if you are facing the problem of vitamin D deficiency. Include good amount of workout, and yoga is must. You can go for butterfly pose, surya namaskar, alom vilom, and you can go for kapalbhati. These all yoga asanas can really help you to give strength to your uterus and to help to cure your PCOD in better way. And coming to the next point, try seed cycling. वैसे तो इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इट इज़ द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल द पीसीओडी इन बेटर वे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपके पीरियड्स आने वाले हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टिल 14 days, दैट इज ओव्यूलेशन, व्हाट यू हैव टू टेक इज, आपको फर्स्ट 14 days के लिए यू हैव टू टेक 1 tablespoon ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड 1 tablespoon ऑफ pumpkin seeds on the daily basis. And after 14th day to 28th day, what you have to take is sunflower seeds and sesame seeds. And how you can take it, either you can take it in the powder form, or you can take it in the soaked form, or any form. आप इसको चाहे wheat flour में knead करो, आप अपनी रोटी में knead कर सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, कर्ड में डाल सकते हो, स्मूदीज शेक्स में आप अपनी जैसे मर्जी इसको कंज्यूम करो, बट try to include these seeds in your diet on the daily basis, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं पीसीओडी क्योर करने में, और पीरियड्स को रेगुलर करने में, एंड इनफर्टिलिटी को क्योर करने में. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट निग्लेक्टेड पॉइंट, दैट इज यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स की यूजेज डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा है, एंड उसके कारण भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज उसके साथ आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होगी, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा, बिकॉज जब प्लास्टिक आपके फूड में लीच आउट हो रहा है तो वो ऐसे लाइक हार्मोन्स को आपके डिस्टर्ब करता है, जो आपके पीसीओडी का कारण बन रहा है और आपके इरेगुलर पीरियड्स का कारण बन रहा है. सो ट्राई नॉट टू यूज प्लास्टिक एंड यूज ग्लास कंटेनर्स, स्टेनलेस स्टील for your tiffin boxes, or either for any purpose. So these all points can really help you to cure your PCOD from the root, and can really help you to manage your other diseases also. So eat right and stay bright. Thank you.